Hello everyone, this is the fifth lecture on structure of atom and we will start this lecture with defects in Bohr's atomic model. As you know, in previous lecture we have discussed Bohr's atomic model. So now we will see what were the limitations of Bohr's atomic model, what were the problems with Bohr's atomic model. So the first limitation or first defect of Bohr's atomic model was that it was unable to explain the atomic spectrum of the atoms other than those of hydrogen. So it was able to explain the atomic spectrum of hydrogen atoms but not the atomic spectrum of the atoms other than hydrogen. So पहला जो प्रॉब्लम था इसके साथ वो यही था कि ये हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम तो एक्सप्लेन कर सकता था बट हाइड्रोजन के अलावा कोई भी बाकी के एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता था. द सेकंड वाज दैट it was unable to explain the effect of magnetic and electric field on the atomic spectrum. So there is an effect of magnetic and electric field on atomic spectrum. So it is observed that when magnetic field is applied in an atom, its spectral lines are splitted. So this splitting of spectral lines in magnetic field is known as Zeeman's effect. Similarly, when electric field is applied, again the spectral line will split, and this splitting of spectral lines due to electric field is known as Stark's effect. So there are two effects. One is called Zeeman's effect, that is because of the splitting of spectral line due to application of magnetic field, and the spectral line are splitted due to presence of electric field, that is called Stark's effect. So remember, there were two effects. One was Zeeman's effect and other was Stark's effect. तो जैसे कि आपको अभी बताया कि स्टार्क्स इफेक्ट क्या होता है कि कभी भी आप अगर किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन में किसी भी एटम में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं. तो इसी स्प्लिटिंग को हम कहते हैं स्टार्क्स इफेक्ट. और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने से स्प्लिट होती है, क्योंकि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे एटम में और अगर उसके आप स्पेक्ट्रल लाइंस को देखोगे तो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो जाती हैं, उस स्प्लिटिंग को हम कहते हैं ज़ीमैन्स इफेक्ट. तो ये इस इफेक्ट को ज़ीमैन्स इफेक्ट हो या स्टार्क्स इफेक्ट हो, दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था. नाउ द थर्ड पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जो तीसरा प्रॉब्लम था दैट इज डुअल नेचर of electrons or dual nature of particles. So according to de Broglie, any particle will behave like both matter as well as wave. But according to Bohr's atomic model, the electron revolve around the nucleus in the fixed circular orbits. Now if the electron behaves like a wave, it is not possible for electron to revolve in a fixed circular orbit. So it was unable to explain that dual nature of matter. तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्योंकि बोर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए. लेकिन डी ब्रॉगली का कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डुअल नेचर होता है, मतलब वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं और मैटर की तरह भी बिहेव करते हैं. तो अगर कोई भी जो पार्टिकल है अगर वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो अगर वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव भी करता है तो वो तो वेव की तरह मूव करेगा, और अगर वो वेव की तरह मूव करेगा तो वेव की तरह मूव करने में उसका कोई फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट तो होगा नहीं, तो कोई प्रोबेबिलिटी होगी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने की. तो इसीलिए जो डुअल नेचर ऑफ मैटर है वो बोर्स एटॉमिक मॉडल के इस पॉइंट को सपोर्ट नहीं करता है. अदर इज हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सो व्हाट वाज हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? So according to Heisenberg's uncertainty principle, it is not possible to calculate the exact position and exact momentum of an electron
साइमल्टेनियसली। ये कहता है कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी एक टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो ये है आपका हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो देयर विल बी एन एरर व्हाइल मेजरिंग इट। तो कुछ ना कुछ एरर होगा और इसी को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। तो एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम आप एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ये कहता है हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे भी अगेन वो इस पॉइंट को सपोर्ट नहीं करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कहना है कि आप एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो। तो जब आप एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेंगे, अदरवाइज उनकी जो पोजीशन है उसको लोकेट करना काफ़ी ईजी हो जाता है किसी भी टाइम पे। द लास्ट ड्रॉबैक ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल वाज दैट इट वाज अनेबल टू explain the geometry of the molecules. So when two or more atoms combine together, how do they combine and what shape will they acquire? It was not explained with the help of बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो ये एक और प्रॉब्लम था बोर्स एटॉमिक मॉडल में कि वो शेप और साइज जो होता है मॉलिक्यूल्स का उसको एक्सप्लेन करने में अनेबल था। तो क्योंकि वो ये नहीं बता सकता था कि जो एटम्स कंबाइन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और जब वो कंबाइन होते हैं तो वो कौन सा शेप एक्वायर करते हैं। सो टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स वी हैव अ न्यू एटॉमिक मॉडल दैट इज नोन एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। So before studying the quantum mechanical model, let's understand two points. One is dual nature of particle or dual nature of matter or electrons, and the second is Heisenberg's uncertainty principle, because these are very important points. So dual nature of electron, that was given by de Broglie, and with the help of de Broglie equation we can find out the wavelength of a particle wave. तो आपको पता है कि जो लाइट होती है वो उसका भी डुअल नेचर होता है, वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और मैटर की तरह भी बिहेव करती है। इसी तरीके से डी ब्रॉगली का भी कहना था कि जो पार्टिकल होता है वो भी पार्टिकल की तरह तो बिहेव करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा। जैसे लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो भी पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है, वैसे भी जो मैटर होता है वो भी पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। तो है तो वो पार्टिकल बट वो वेव की भी तरह बिहेव करेगा, तो कुछ बिहेवियर उसमें वेव का भी होगा। एंड अगर इसमें वेव का बिहेवियर है, अगर ये वेव की तरह बिहेव करता है तो इसका मतलब इसकी कुछ वेवलेंथ होनी चाहिए, कुछ वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव और द वेवलेंथ ऑफ अ मैटर वेव was given by de Broglie equation, and that is lambda is equal to h by m into v. So lambda indicates the wavelength. Lambda is wavelength of the wave of the particle. If we are talking about the electrons तो lambda क्या हो जाएगी, wavelength हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वेव की। Now the second h is called Planck's constant. So you already know about h is Planck's constant. The next is m is the mass of that particular particle. If we are talking about electron wave then m is mass of the electron, and the last is v is the speed of the electron. तो ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हो जाएगी आपके लिए, आप इलेक्ट्रॉन वेव की वेवलेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ जनरली द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वेव फॉर एन इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन वेव की आप वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हो, सो h, द वैल्यू ऑफ h इज 6.626 इंटू 10 raised power minus 34 divided by the mass of electron is about 9.1 into 10 raised power minus 31 kilogram, and the velocity of electron is about 2.2 into 10 raised power 8 meter per second. तो यहाँ से आप वेवलेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन वेव की। तो आप मुझे ज़रा जल्दी से बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन वेव होती है उसकी वेवलेंथ अप्रॉक्सीमेटली कितनी आती है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एनी पार्टिकल वेव। तो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं तो उनकी वेवलेंथ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे
कि वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मास जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होती जाएगी। सो देयरफॉर अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी दैट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, वो ना के बराबर होगी। सो इसीलिए जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनका हम वेव नेचर नहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट स्मॉल पार्टिकल्स के लिए ये काफ़ी वैल्यूएबल है। So from this formula, you know that m into v, mass into velocity is called momentum. So it is denoted by p. So there is one more formula for the calculation of wavelength, that is equal to h by p. So h is Planck's constant and p is the momentum of the particle. So wavelength of any particle is equal to Planck's constant divided by the momentum of the particle. तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो h by p होगी, that is momentum of the particle. Now the next is Heisenberg's uncertainty principle. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, Heisenberg. So Heisenberg's uncertainty principle. So what does it say? Heisenberg's uncertainty principle says while a microscopic particle is moving, it is impossible to determine exact position and momentum simultaneously. तो ये क्या कहता है कि अगर कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम आप एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। और अगर आप ऐसा करते हो, आप अगर उसका जो मोमेंटम है और पोजीशन है वो आप एक साथ डिटरमाइन करने की कोशिश करोगे, देयर विल बी एन अनसर्टेनिटी, देयर विल बी एन एरर। तो कुछ अनसर्टेनिटी होगी, आप अनसर्टेन पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट कर पाओगे उसका। नाउ व्हाट इज द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम, दैट वाज गिवन बाय Heisenberg. So the formula for uncertainty in position, so let us say delta x denotes uncertainty in position, or you can say this is the error while measuring the पोजिशन। तो डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी है पोजिशन में, क्योंकि आपको पता है कि आप एग्जैक्ट पोजिशन अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होगी। लेट अस से इट इज डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी है पोजिशन में। एंड डेल्टा पी डिनोट्स द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी होगी दैट इज डेल्टा पी। सो अकॉर्डिंग टू Heisenberg's uncertainty principle, the product of uncertainty in position and uncertainty in momentum is greater than or equal to h by 4 pi. तो जो डेल्टा x इंटू डेल्टा पी की जो वैल्यू होगी वो कम से कम h बाई 4 पाई होगी, या फिर उससे ज़्यादा होगी, उससे कम अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती। तो कम से कम इतनी अनसर्टेनिटी तो होगी। यू कैन ऑल्सो सी डेल्टा पी that is p is equal to m into v. So mass of electron, it will remain constant. So delta p will be equal to m into delta v. So you can use m into delta v instead of delta p. So it will become delta x into m into delta v is equal to h by 4 pi, or it is greater than equal to h by 4 pi, or you can say delta x into delta v is greater than equal to h by 4 pi m. So अगर आपके पास कभी भी मिनिमम अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए आती है तो मिनिमम कितना होगा, मिनिमम विल बी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h बाई 4 पाई, h बाई 4 पाई से कम नहीं होगी। तो मिनिमम अगर बोला जाता है तो यू हैव टू पुट द वैल्यू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h बाई 4 पाई और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h बाई 4 पाई एम। तो उससे ज़्यादा ही होगी, उससे कम नहीं हो सकती है। सो दिस इज डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल एंड Heisenberg's अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या है डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल और क्या है Heisenberg's अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्योंकि जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बोर्स एटॉमिक मॉडल को सपोर्ट नहीं करते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव करता है। इसका कहना है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन
वेव की तरह मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में वेव की भी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो ऑब्वियसली वो वेव की तरह तो मूव कर नहीं पाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट पोजीशन है या एग्जैक्ट मोमेंटम आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो। तो जब हम एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट मोमेंटम किसी भी मूविंग पार्टिकल का कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो हम फिर उसका जो पाथ है वो डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ ये इसी फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, क्योंकि हम उसकी पोजीशन तो फिक्स पता कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो इसी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद बोर्स एटॉमिक मॉडल। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो देखते हैं जो आपका वेव मैकेनिकल मॉडल है या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो क्या कहता है, क्योंकि वो हर चीज़ को अब एक्सप्लेन करता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी अब वो दूर हो जाएंगी। सो लेट्स डिस्कस द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो वेव मैकेनिकल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होती है विद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सेज दैट डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m by h square into e minus v is equal to 0. Now here psi is a function called wave function. Psi को हम कहते हैं wave function. So psi is wave function and this is partial derivative of psi with respect to x, with respect to y and with respect to z. Then m is mass of electron, e is the टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसकी टोटल एनर्जी ई हो जाएगी। एंड वी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये है श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वेव फंक्शन साई। सो साई इज कॉल्ड वेव फंक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई। सो साई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फर्स्ट ऑफ ऑल द साई डिनोट्स द amplitude of electron wave. It denotes the amplitude of electron wave. And the second thing, psi square denotes the probability. Probability of what? Probability of finding an electron at एनी पोजीशन जहां पे उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड। तो किसी भी एक्स वाई जेड पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज डिनोटेड बाय साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर और साई का ये फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया, ये इंपॉर्टेंस हो गई साई की और साई स्क्वायर की। अब वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड तो होता है, वो किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। लेकिन जैसा कि बोर एटॉमिक मॉडल कहता था कि वो किसी फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, वेव मैकेनिकल मॉडल ऐसा बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के किसी भी पॉइंट पे फाइंड होने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। हाँ, जिस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी ऑब्वियसली आपको उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। बट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके जो न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग जगह पे मिलने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती है। तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किसी फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि हमको अब ये बात दिमाग से निकाल देनी है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किसी फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में ही मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में नहीं मूव कर सकता है, ये कहता है वेव मैकेनिकल मॉडल। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी और कहीं पे उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है। तो जहाँ पे उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, मान लेते हैं मैं इसको डॉट से शो कर रहा हूँ, तो जहाँ पे डॉट थोड़ा लाइट है वहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम होगी, और जहाँ पे डॉट थोड़ा डार्क है वहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। तो मान लेते हैं कहीं पे उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती है और कहीं पे मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर
इस रीजन में उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सपोज दिस इज द रीजन, दिस रीजन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई, बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है अगर इस रीजन में, देन द रीजन अराउंड द nucleus or the space around the nucleus in which the probability of finding an electron is maximum, that space is known as orbital. That space is known as orbital. So what are orbitals? The orbitals or the orbital is the space around the nucleus in which the probability of finding an electron is maximum. तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑर्बिटल किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। मतलब ये हुआ कि जैसा कि बोर्स एटॉमिक मॉडल कहता था, बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या कहता था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सही क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, बस किसी पॉइंट पे या किसी फिक्स्ड रीजन में, किसी स्पेस में, न्यूक्लियस के अराउंड किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होगी, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, ऑर्बिट्स नहीं कहते हैं। नाउ अब अगर आप एटम को पिक्चराइज करें, सो एटम विल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। आप 3 पार्ट्स के बारे में ध्यान रखिए। द वन इज कॉल्ड शेल, अदर इज पार्ट दैट इज सब शेल, एंड देन कम्स ऑर्बिटल्स। तो इन 3 चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, शेल के बारे में, सब शेल के बारे में और ऑर्बिटल्स के बारे में। सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेल। तो शेल क्या होता है? किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड एक रीजन होता है जिसको आप शेल कहते हैं, जिसको आप पहले ऑर्बिट्स कहते थे। हाँ, ऑर्बिट्स जो फिक्स सर्कुलर पाथ होते हैं, आप किसी फिक्स सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट्स मत समझिए, इसीलिए हमने उसको क्या नाम दिया? शेल नाम दिया, ना कि ऑर्बिट्स। तो शेल क्या होता है? शेल न्यूक्लियस के अराउंड कोई रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं। नाउ दिस शेल कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स दैट इज कॉल्ड सब शेल। कोई भी शेल जो होती है वो कोई फिक्स सर्कुलर पाथ नहीं होती है, इस शेल के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उन अलग अलग पार्ट्स को हम बोलते हैं सब शेल। कितने अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो अभी वेव मैकेनिकल मॉडल डिसाइड करेगा। वेव मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि सब शेल्स कितनी होती हैं एक शेल में। तो अब जो हमारा कॉन्सेप्ट था एक सर्कुलर ऑर्बिट का, वो अब हमारे पास वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा। तो आपको अब एक नया कॉन्सेप्ट समझना है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये क्या कहता है? शेल है, ठीक है, जिसको आप पहले ऑर्बिट समझते थे। एक्चुअल में ऑर्बिट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ऑर्बिट तो एक सर्कुलर पाथ हो गया। जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो मिलेगा आपको किसी सर्कुलर पाथ में नहीं मिलेगा, वो तो 3 डायमेंशनल रीजन में, वो किसी भी पाथ में मिल सकता है। तो कहीं पे भी वो मिल सकता है और जहाँ पे हम उसको फाइंड कर सकते हैं उसको हम कहते हैं शेल। अब जहाँ पे मिलने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उनको कहते हैं ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली आपको समझना क्या है, एटम का एक पार्ट होता है शेल, शेल के भी पार्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सबशेल्स, और सबशेल्स के भी डिफरेंट पाथ होते हैं जहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे इनको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स सब शेल के, क्योंकि शेल में अलग अलग सब शेल्स होंगी, उन सब शेल्स में अलग अलग ऑर्बिटल्स होंगे। तो अलग अलग ऑर्बिटल्स कैसे पता चलेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हुई वो एक ऑर्बिटल होगी। तो ऐसे में बहुत सारी ऑर्बिटल्स होंगी, एक ऑर्बिटल नहीं होगी, बहुत सी ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। तो अब हम वही देखेंगे कि किसी भी शेल में कितनी सब शेल्स, कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं और इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं इन शेल्स और सब शेल्स और ऑर्बिटल्स में। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स का। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्या डिफरेंस होता है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। तो आपने पहले एक वर्ड पढ़ा था ऑर्बिट। अब भले ही ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया, अब हमको एक चीज़ पता चल गई कि ऑर्बिट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। सो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, लेट्स सी। तो सबसे पहले हमने ऑर्बिट पढ़ा था। ऑर्बिट पढ़ा था हमने किस में? हमने ऑर्बिट पढ़ा था बोर्स एटॉमिक मॉडल में। तो ऑर्बिट क्या होता है? एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होता है अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें हम ये अज्यूम करते थे कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, भले ही हमको पता चल गया कि अब ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। जबकि ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अराउंड, आप देखिए जो सर्कुलर पाथ होता है वो 2 डायमेंशनल पाथ होता है, और जबकि हम ऑर्बिटल की बात करते हैं, ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी
पॉइंट पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उसको हम कहेंगे ऑर्बिटल। द सेकेंड पॉइंट इज ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल, मतलब वो कोई डायरेक्शन उनकी होती नहीं है, जबकि जो ऑर्बिटल्स होते हैं ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल, मीन्स उनकी कोई एक फिक्स डायरेक्शन होती है। XYZ अभी देखेंगे हम कि किस तरीके से जो ऑर्बिटल्स होते हैं, कुछ ऑर्बिटल्स क्या होती है, डायरेक्शनल होती है, उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। देन देयर इज वन मोर पॉइंट, दैट इज ऑर्बिट्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट्स डज नॉट फॉलो हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं कर सकते हैं और इसीलिए हम ये ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को फॉलो ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या करती हैं, फॉलो नहीं करती हैं। लेकिन जो ऑर्बिटल्स होती हैं, ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करें। एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आपने रूल पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में 9th-10th में, कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज 2n², while the maximum number of electrons in an orbital is 2। किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्बिट की, उसमें 2n², क्योंकि अगर फर्स्ट ऑर्बिट कहते थे हम, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8, देन 18, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इतने हो सकते हैं। लेकिन ऑर्बिटल में, किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और लास्ट और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स कितने डिफरेंट हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑर्बिट्स होती हैं वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करती है। तो ऑर्बिट्स हमेशा क्या होती हैं, सर्कुलर होती है। ये 2 डायमेंशनल हो गया। जबकि एक ऑर्बिटल्स जो होती हैं, ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है और वो 3 डायमेंशनल शेप होता है। तो डिपेंड करता है टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स में। कुछ ऑर्बिटल्स जो होती हैं स्फेरिकल होती हैं, कुछ डम्बल शेप में होती हैं, कुछ डबल डम्बल शेप में होती हैं। तो अलग अलग शेप इन ऑर्बिटल्स का होगा। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।